جو رخشان ڈویان ہے اس پہ جب سے BLA میں بشیر زیب آیا ہے قیادت کو تو اس نے بڑا اٹریکٹ کیا ہے. اچھا جو بھی قیادت پہ آتا ہے مطلب اللہ نظر آیا BLF میں آوران یا آس پاس کا پورا ایریا اس نے کنٹرول کر لیا تھا تو وہ جانتا ہے لوگوں کے مزاج اس مطابق وہ ایکٹ کرتے ہیں اور جو قبیلہ ہوتا ہے اس کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتے ہیں. ٹرائبل سسٹم میں تو آپ جانتے ہی ہیں. تو اس طرح بشیر زیب کیونکہ رخشان ڈویان کا ہے تو رخشان ڈویان میں ابھی ڈومیننسی BLA میں زیادہ تر ان کی ہو گئی. اگر آپ بشیر زیب سے پہلے کا پیریڈ دیکھیں اور بعد کا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دور میں یہاں سے زیادہ ریکروٹمنٹ بھی ہوئی ہے, لوگ جا بھی رہے ہیں اور کاروائیاں بھی زیادہ ہوئی ہیں. BYC کا وہاں پہ جلسہ رکھنا بھی بڑا معنی خیز ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ CPEC پہلے گوادر میں رکھا اب یہاں گئے ہیں تو اب پہلے چائنا کو پیغام دیا, سیندا ابھی بھی چائنا کے پاس ہے. ریکارڈنگ جو ہے نا یہ کینیڈین بیس کمپنی ہے یا ویسٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو کیا ایٹ اے ٹائم BYC دونوں کو ناراض کر سکتی ہے, لیکن BYC والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. اور کسی بھی مہذب سوسائٹی میں یہ جو جرم ہے یہ بڑے سنگین جرم ہے. کسی کو لاپتہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے, حبس بیجا میں رکھنا بہت بڑا ظلم ہے. تو ان چیزوں کا حل تو نکالنا ہے, آج نکلے کل نکلے. تو کوشش یہ کرے کہ یہ سیاسی قیادت کچھ کرے. اور دوسرا اگر یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے تو وفاق میں آپ نے دیکھا PTI کے ساتھ جو ہوا, تو جو بھی قیادت ہے چاہے BYC کی ہے چاہے دوسرے ہیں تو اس ایکسٹریم پر نہ جائیں کہ پھر FIRیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ انسان حیران ہو جائے کہ یار یہ کیا ہے. پہلے ہی بلوچوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ ڈسپرس ہو گئی, کئی لاپتہ ہیں, کئی کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں. تو اسی طرح دوسری جانب ہم دیکھیں فورسز کے ہزاروں لوگ. اچھا ایک اور بات بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس طرف مر رہے ہیں, اس طرف شاید ان سے زیادہ مرے. پوری زندگی لگا دیتا ہے ایک ٹرک بنانے میں قسطوں پر ادھر ادھر, اور یہ لوگ 1 سیکنڈ مطلب 1 منٹ میں اس کی پوری محنت وہ کر دیتے ہیں. اس بیچارے پر کیا گزرتی ہوگی. لیکن پھر بھی آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں یہ ہے وہ ہے یا ہم ایک دوسرے کو ایسے وہ کرتے ہیں, تو کم سے کم غریب کا اور عام عوام کا ضرور خیال رکھو. اور یہ لیویز پر جو آپ بار بار چڑھائی کر رہے ہو تو قبائلی فورس ہے, پھر آپ کہتے ہو FC آ گئی ہے, دوسرے آ گئے ہیں, تو جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو. ان کو جب معطل کر دیتے ہیں ان کے بچوں کا کیا ہوتا ہے. اور دوسرا اگر ان کو مار دو گے تو ان کے بھائی, افغانستان میں یہ ماڈل ہوا, اس کا جو بھائی آئے گا وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ ہے, وہ کہے گا میرا بھائی مارا ہے. وہ چاہے BLF نے مارا ہے, BLA نے مارا ہے. جس طرح BLA یا BLF والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ فورسز نے یا وہ کی تو ہم ادھر گئے یا یہ ہوا یا وہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ 25 جنوری کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی کے خلاف دن کے طور پر منایا جائے گا. یہ BYC نے یہ اعلان کیا تھا آج سے کچھ دن قبل. اچھا BYC مرلہ وار چلتی آ رہی ہے. BYC کا پاس تو میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ برمش یکجہتی کمیٹی سے بلوچ یکجہتی کمیٹی بنا. ابھی بھی شاید یہ اس کا نام آگے کچھ اور ہو جائے, لیکن فی الحال یہ BYC کے نام سے ہی کام کر رہی ہے. اس سے پہلے انہوں نے گوادر میں جو ایک اپنی بڑی گیدرنگ رکھی تھی, جلسہ رکھا تھا, جس میں اس وقت فورس کا استعمال ہوا اور نہیں جانے دیا گیا. تلار چیک پوسٹ پر قافلے روکے گئے. ادھر میں نے تلار چیک پوسٹ سے بھی آپ لوگوں کو آپ تک لایا تھا کہ یہاں کی کیا صورتحال ہے. تو وہاں تو نیٹ ورک ہی نہیں تھا, تو اوورآل نیٹ کی سہولت بھی نہیں تھی. مجھے مجبوراً وہ چیزیں کوئٹہ آ کر اپلوڈ کرنی پڑی تھیں. تو وہ نہیں چھوڑا گیا. پھر آپ کو پتہ ہے وہ 28 جولائی کو تھا, وہ پھر 11 اگست 12 اگست تک وہ گیم گئی تھی. تو پھر کوئی مذاکرات ہوئے, لیکن وہ جو صرف گوادر میں جو جلسہ ہونا تھا وہ پھر 11-12 شہروں میں گیا. تو وہ پھر پیچھے جب آئے اس صورت میں آئے. اس دفعہ میرے خیال میں ریاست کا رویہ تھوڑا نرم ہے, وہ اس طرح شاید سختی سے نہ نمٹے, جو کہ اچھی بات ہے. میرے خیال میں جمہوریت کا یہی مطلب ہے, جس کی جتنی بڑی فرسٹریشن ہو اس کو نکالنے دیا جائے. اگر آپ ایک گھر کی بھی بات کریں نا, اگر گھر میں کسی کو دبا کے رکھیں تو وہ باغی بن جاتا ہے. تو اس طرح جب ہم ملک کی بات کریں وہاں پہ اس طرح خونی رشتے بھی نہیں ہوتے. ایک آئین کے ذریعے ایک
ताल्लुक जुड़ा होता है, और अगर हम उस आयन को भी ना माने और लोगों को दबाए रखें, उनकी आहो पुकार भी ना सुने, तो फिर ये मेरे ख्याल में किसी भी सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो भी एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। तो सियासी जद्दोजहद, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की जो लीडरशिप है, ये यूथ है, ये करीम है, ये भी देखें, इनका नुकसान सूबे का नुकसान है, या मुल्क का नुकसान हो या ना हो, सूबे का नुकसान ज़रूर है। ये हाईली एजुकेटेड लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसी और फील्ड का माहिर है, तो मतलब अभी इनके कैरियर भी शुरू हो रहे हैं, अभी इन्होंने कुछ करना था। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इफ़ेक्टी हैं, किसी का भाई, किसी का वालिद, किसी का बेटा, तो मेजॉरिटी इफ़ेक्टी लोगों की भी है जो मेन क़यादत में हैं। इस दफ़ा इनकी स्ट्रेटजी और इन्होंने किया, मतलब अगर अब मैं आपको नसीराबाद डिवीज़न की, वहाँ पे महारन गई है, कलात डिवीज़न को इसने संभाला, फिर डॉक्टर सबिया वो पहले ही दालबंदीन में लोगों को मोबिलाइज़ करने चली गई, फिर वो शाहजी सिबगतुल्ला साहब हैं, और साथ बीबर्ग हालांकि 2010 का गालिबन कुजदार यूनिवर्सिटी में ये जब एजुकेशन हासिल कर रहे थे तब वहाँ धमाका हुआ। फिर जो कुछ हुआ वो बेचारे माजूर हो गए, अब वो चल फिर तो नहीं सकते, लेकिन एक्टिव बहुत हैं, होते व्हील चेयर पे ही हैं, लेकिन हर मुजाहरे में, हर उसमें होते रहते हैं। तो इस दफ़ा इनकी क़यादत हर जगह गई, मोबिलाइज़ किया, बड़े बड़े इन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स रखे। अच्छा, दालबंदीन इससे पहले ऐसा इलाका नहीं था, वहाँ पे कारोबारी मरकज़ है। लेकिन एक बात और भी बोलूँ कि चागी डिस्ट्रिक्ट, इसमें पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना है, एटमी ताकत बना है, रिकॉर्डिक, सेंदक और लातादाद मिनरल्स हैं, दूसरे मुल्कों से इसकी बॉर्डर्स हैं, हर हवाले से ये सूटेबल है। लेकिन अभी भी वहाँ पे अगर आप देखें, जो कुछ लोग सिर्फ सादिक संजरानी ग्रुप या आरिफ जान हसनी या ये दूसरे फ़तेह हसनी घराना, इनको ना देखें, लेकिन आम लोग बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत उनकी सूरत हाल, इवन पानी को तरसते हैं। वो पिछले दिनों दोस्त गए तो बता रहे थे कि यार अभी ये रिकॉर्डिक वाले थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं कि जहाँ से हम सोना निकाल रहे हैं, कॉपर निकाल रहे हैं, दुनिया की हर चीज़ निकाल रहे हैं, उसको छोड़ें। जिस मुल्क पे आप वो करते हो कि एटॉमिक पावर बने हैं, ये है वो है, मुल्क बन गया, लेकिन उन बेचारों की क्या हालत हुई, ना बारिशें वहाँ हुई, वो क्लाइमेट चेंज जो आया वो आज तक वो लोग सफ़र कर रहे हैं। कोई किस तरह माजूर हुआ तो कोई किस तरह माजूर हुआ, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ लाजमी याद रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को इसकी जानिब। ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हम निकले हैं उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। तो दूसरी जानिब रियासत कहती है कि अगर हम देखें, पहले मतलब बलूचिस्तान का जैसे भी इलाक़ा हुआ, हर ग्रुप की अपनी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। मैं उसमें फ़िलहाल तो नहीं जाऊंगा, फिर कभी जाएंगे जब लोगों के हिस्टोरियन के साथ बैठेंगे। तो वो कहते हैं कि क्या था, आज देखो रोड दिए हुए हैं, मेडिकल कॉलेजेस दिए हुए हैं, यूनिवर्सिटी दिए हुए हैं, ऐसा ही तब्दीली आती है। अब ये कहते हैं कि ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि अगर हो रहा है तो बहुत कुछ दिया भी जा रहा है। दूसरे कहते हैं नहीं, मुल्क चल रहा है तो बलूचिस्तान के नाम पे चल रहा है, बलूचिस्तान को लूटा जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम पे ख़र्च बहुत कम हो रहा है। तो दोनों जानिब अपनी एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। अभी लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो BLA वाले जिस तरह एक्टिव हैं, रियासत कहती है कि BYC, BLA या BLF या दूसरे भी जो अस्करियत पसंद हैं उनकी वायसीज हैं, ये कानून के अंडर काम करती हैं, वो कानून को नहीं मानते। तो ये कहते हैं नहीं, हम खिलाफ वर्जियों के खिलाफ निकले हैं, वो जाने और तुम जानो। तो ये अब उनका नैरेटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको तरवीज ज़रूर देता है जब ये खुल के आते हैं और कहते हैं कि हम इफ़ेक्टी हैं। तो लोग जब इनके साथ मिलते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली अस्करियत पसंदों को एक एज तो दे देता है। बहरहाल इसके साथ साथ दूसरा BLA वाले जो है ना, वो आज एक दोस्त भी बोल रहा था कि जब तक लेवीज़ फोर्स है तब तक BLA को असले की कमी नहीं होनी। मतलब रात भी वो गए पंजगूर से लेवीज़ चौकी पे, असला भी ले गए, उसको जला भी दिया, यरकमाल भी बना लिया। मतलब यार ये कैसी फोर्स है, इसको कमांडो ट्रेनिंग दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या हुआ।
अच्छा, इनके उधर चीफ बनाए हुए हैं डीसी। डीसी यहाँ हरामे खा खा के, चैनों की कमाई खा खा के कितने हैं? कोई ईमानदार मुझे बताएं कि यार ये बड़ा ईमानदार डीसी है, 1 रुपए नहीं खाता, ये फील्ड में है। सारे चैनों की कमाई के लिए अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्शनल केस होगा, कोई इक्का दुक्का अगर निकल गया। मतलब 35-36 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें हमें एक भी नहीं मिलता कि यार ये डीसी है, ये बड़ा ईमानदार है। अगर आएगा भी तो आपको कोई इक्का दुक्का नाम ही मिलेगा, अदरवाइज बस 2 नंबरी है। तो फिर यही होगा जब आपके वो 5 कदम नहीं चल सकते और गए हुए हैं कमाई के लिए, फिर यही होगा। इस तरह सिंध में, कराची में समीदीन एक रैली की क़यादत कर रही थी, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि 25 जनवरी के हवाले से ये बड़ी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। और दालबंदीन में स्टेक इस तरह उनके पहले नहीं थे। मैंने कहा कि दालबंदीन का पास्ट उस तरह नहीं है कि जिस तरह आप देखें बाकी इलाकों में, पहले BYC से पहले जो कौम परस्त हैं उनका एक बड़े स्टेक थी अवाम में, तो अभी उनके उस साइड पे इतने दिखाई नहीं देते। इसके साथ साथ जब उनके नहीं थे तो BYC के कैसे हो जाते, लेकिन ये गए हैं, कंपेनें बाकायदा वहाँ जाकर की। जिस तरह मैंने आपको कहा कि डॉक्टर सबिया वहाँ पहले ही पहुँची हुई थी, देख रही थी, लोगों को मोबिलाइज कर रही थी। अभी फिर नोशकी और खारान का इन्होंने वो क्या कहते हैं दौरा किया, कॉर्नर मीटिंग्स, वहाँ इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है, वहाँ इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और दूसरा जो रख्शान डिवीजन है, इस पर जब से BLA आया, BLA में बशीर ज़ेब आया है क़यादत को, तो उसने बड़ा अट्रैक्ट किया है। अच्छा, जो भी क़यादत पे आता है, मतलब अल्लाह नज़र आया BLF में आवरान या आसपास का पूरा एरिया उसने कंट्रोल कर लिया था। तो वो जानता है लोगों के मिजाज, उस मुताबिक वो एक्ट करते हैं, और जो कबीला होता है उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं। ट्राइबल सिस्टम में तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह बशीर ज़ेब, क्योंकि रख्शान डिवीजन का है, तो रख्शान डिवीजन में अभी डोमिनेंसी BLA में ज़्यादातर इनकी हो गई। अगर आप बशीर ज़ेब से पहले का पीरियड देखें और बाद का देखें तो आप देखेंगे कि इसके दौर में यहाँ से ज़्यादा रिक्रूटमेंट भी हुई है, लोग जा भी रहे हैं और कार्रवाइयाँ भी ज़्यादा हुई हैं। तो नोशकी और खारान में तो थी पहले से, लेकिन अब जो आपको ज़्यादा दालबंदीन, मतलब ये जो मुझे नज़र आ रहा है डिस्ट्रिक्ट चागी, ये बहुत मुझे मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से रिकॉर्डिक सेंदक बाकी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। तो यहाँ को वो कोशिश करेंगे कि जिस तरह अच्छे तरीके से CPEC फंक्शनल नहीं हुआ, इसी तरह कोशिश करेंगे इनको भी फंक्शनल ना होने दें। अब BYC का वहाँ पे जलसा रखना भी बड़ा बानीखेज़ है। वो यही कहते हैं कि CPEC पहले गवादर में रखा, अब यहाँ गए हैं। तो अब पहले चाइना को पैगाम दिया, सेंदक अभी भी चाइना के पास है। रिकॉर्डिक जो है ना, ये कैनेडियन बेस्ड कंपनी है, या वेस्ट आप इसे कह सकते हैं। तो क्या एट अ टाइम BYC दोनों को नाराज़ कर सकती है, लेकिन BYC वाले ये कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेके जा रहे हैं, हमें मेन स्टेक होल्डर है, हमसे पूछा नहीं जा रहा। तो ये वो बहरहाल ये एक बड़ी गेम है। काज इसकी वो क्या कहते हैं, मुद्दे और बहुत सारे आ जाते हैं। सबसे पहले ये मसख़शुदा लाशों को लाते हैं, लापता अफराद का मुकदमा लड़ते हैं, और किसी भी महज़िब सोसाइटी में ये जो जुर्म है ये बड़े संगीन जुर्म है। किसी को लापता करना बहुत बड़ा जुल्म है, हब्से बेजा में रखना बहुत बड़ा जुल्म है। तो इन चीज़ों का हल तो निकालना है, आज निकले कल निकले। तो कोशिश ये करे कि ये सियासी क़यादत कुछ करे। और दूसरा, अगर ये एक्सट्रीम पे चले गए तो वफाक में आपने देखा PTI के साथ जो हुआ, और मौजूदा जो कम्बिनेशन है, इधर से सरफराज बुगटी हो, उधर से हाफिज़ साहब हो, तो ये बड़ा लीथल कम्बिनेशन बनता है। तो जो भी क़यादत है, चाहे BYC की है चाहे दूसरे हैं, तो उस एक्सट्रीम पर ना जाएं कि फिर FIRें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि इंसान हैरान हो जाए कि यार ये क्या है। पहले ही बलोचों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो डिस्पर्स हो गई, कई लापता हैं, कई की मसख़शुदा लाशें मिली हैं। तो इसी तरह दूसरी जानिब हम देखें फोर्सेस के हज़ारों लोग। अच्छा, एक और बात भी है, ऐसा नहीं है कि इस तरफ मर रहे हैं, उस तरफ शायद इनसे ज़्यादा मरे हों, लेकिन क्योंकि वो फोर्स है तो उसको उस तरह, उसका तो वो क्या कहते हैं, काम ही इस तरह का है, तो वो उस तरीके से पॉइंट आउट नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसका कोई ना कोई हल, चाहे आज निकालें चाहे 2 साल बाद निकालें, निकालना ज़रूर है। जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा मसाइल होंगे। इसके साथ साथ मैं देख रहा था BLA वालों ने कल ट्रक भी जलाए नोशकी में। वो 1-2 थे कोई पठान, वो फिर पश्तो भी बोल रहे थे। तो बड़ा दुख भी हुआ कि यार एक बंदा
पूरी ज़िंदगी लगा देता है एक ट्रक बनाने में, किस्तों पर इधर उधर, और ये लोग 1 सेकंड मतलब 1 मिनट में उसकी पूरी मेहनत वो कर देते हैं। उस बेचारे पर क्या गुजरती होगी। तो ठीक है, चलाती रहती हैं, लेकिन कम से कम गरीब लोगों का ख्याल रखो। आप और रियासत का चल रहा है, मैं ज़ाती तौर पर जंगों, जदल, तशद्दुद इन चीज़ों से दूर हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो कि नहीं ये है वो है, या हम एक दूसरे को ऐसे वो करते हैं, तो कम से कम गरीब का और आम आवाम का ज़रूर ख्याल रखो। और ये लेवीज़ पर जो आप बार बार चढ़ाई कर रहे हो, तो कबायली फोर्स है, फिर आप कहते हो FC आ गई है, दूसरे आ गए हैं, तो जो मकामी लोग हैं उनके साथ आप ये कर रहे हो। इनको जब मुअत्तल कर देते हैं, इनके बच्चों का क्या होता है। और दूसरा, अगर इनको मार दोगे तो इनके भाई, अफगानिस्तान में ये मॉडल हुआ, उसका जो भाई आएगा वो फिर ये नहीं देखेगा कि वो है, वो कहेगा मेरा भाई मारा है, वो चाहे BLF ने मारा है, BLA ने मारा है। जिस तरह BLA या BLF वाले कहते हैं हमारे साथ फोर्सेज ने या वो की तो हम इधर गए, या ये हुआ या वो हुआ, तो ये किसी भी तौर पर हल नहीं है। तो बहरहाल BYC की मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी जा रही है, इनका जो बयानिया है बहुत बाय किया जा रहा है, लेकिन बाद में देखना यही है कि इनका वो क्या है, एक्सट्रीम क्या है, ये इनके मुतालबात क्या होंगे एक्सट्रीम वाले, और इनकी एक्सट्रीम जदोजहद क्या होगी। ये जितनी पुरअमन रहे, जितना ये मार्जन दें, जितना ये टेबल टॉक करें, ये बेहतर होगा। रियासत जितना जल्दी इनको इंगेज करे, मुज़ाकरात करे, कोई हल निकाले, जो हैं उनको रिहा करे, जो नहीं हैं उनके बच्चों की कफालत करे, कुछ कंपनसेशन करे, बाकी पता चले कि रियासत ही हमारी रियासत है। तो उम्मीद करेंगे कि इसका मुस्तकबिल कोई हल निकाला जाएगा और कोई क्रैकडाउन नहीं होगा। जिस तरह समीदीन पे कराची में हुआ, गिरफ्तारियां हुई, वहाँ पे सीनियर लोग गिरफ्तार हैं, तो बड़ा दिल दुखता है इस उम्र में इन लोगों को। फिर वो ये कहते हैं कि हमारे लिए शायद ये ज़मीन तंग हो गई है, वगैरह वगैरह। तो रियासत भी कुछ अपन बहुत ज़्यादा वो करे, ताकि बड़ा दिल दिखाए, ताकि जो गलतियाँ हुई हैं मुस्तकबिल में मज़ीद ना हों और कंक्लूजन की जानिब जाया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।